So, students, in today's topic, we will discuss about rest and motion. Actually, when we discuss about any type of motion, whether it is one dimension, we will discuss in lecture. This is time dimension motion, two dimension motion, or three dimension motion, or any type of motion. First question arises: what is rest and what is motion? There are two states of any particle, of any body, of any person, that is rest and motion. ये दो स्टेट हैं. हम इसको कब बोलेंगे? If a person is sitting here, a person is standing here, then his or her position is in rest or motion. बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है. सपोज वी आर सिटिंग इन ए ट्रेन एंड ट्रेन इज रनिंग ऑन द ट्रैक. सिंपल, वी आर सिटिंग इन ए ट्रेन ऑन द बर्थ ऑफ द ट्रेन एंड सिटिंग इज रनिंग ऑन द ट्रैक. सो व्हाट अबाउट द पोजीशन ऑफ ए पर्सन who is sitting in the train? Obviously, he is in rest. But a person who is standing outside the train, who is standing on the platform, for that person which is sitting in the train, which is sitting on the berth of the train, that person is in motion. But in the train, that is in rest. So क्या हुआ? एक सिंपल डेफिनेशन है. ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है. इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर किसी पर्सन की, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो रेस्ट में कहलाएगा. आई एम स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ कैमरा, सो आई एम इन रेस्ट. बट इफ माई पोजीशन इज चेंज लाइक दिस, तो पोजीशन इज चेंज विद रेस्पेक्ट टू कैमरा, विद रेस्पेक्ट टू, सो what happened? I am in motion. If I am stand still here, then I am in rest. If my position vary with the time, that's mean I am in motion. तो क्या हुआ कि मेरी पोजीशन चेंज हो रही है ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में विद टाइम. तो मैं क्या कहलाऊंगा? मैं रेस्ट में कहलाऊंगा. मीन्स क्या हुआ? द पर्सन हु इज सिटिंग in the train on the berth with respect to other person who is sitting in front of him, with respect to that person, the position of that person does not change. That means he is in rest. But the person who is standing on the platform, with respect to that person, the position varies, position change with the time. तो क्या हुआ कि उसके रेस्पेक्ट में वो पर्सन कैसा है? मोशन में है. तो बिल्कुल एक सिंपल सा चीज हुई कि हम रेस्ट को और मोशन को एक ही पर्सन, एक ही सिंगल पर्सन, एक सिंगल पर्सन है ये, ठीक है, ये पर्सन यहाँ बैठा हुआ है, ये पर्सन दूसरा है, ये ट्रेन की बोगी है, और एक ये थर्ड पर्सन है. विद रेस्पेक्ट, ये हमारा ए पर्सन ए है, विद रेस्पेक्ट टू बी, ये कैसा है? रेस्ट, क्योंकि ये इसको देख रहा है और इसके रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. ए डजंट चेंज इट्स पोजीशन. दैट्स मीन विद रेस्पेक्ट टू बी इज इन रेस्ट. बट with respect to C, because train is running on the track, that's mean with respect to C, इस A की पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है. तो जब A की पोजीशन चेंज हो रही है तो
means with respect to C, the same person is in motion. Same person, I am talking about A. Person A is in rest with respect to person B. Why? Because its position is not varying with time with respect to B. But the same person, the A person, is in motion with respect to C. Why? Because its position changes. So this is simple concept of rest and motion. Now, next thing is one, two, and three dimensional motion. When we are talking about motion, then we will discuss one dimensional motion, two dimensional motion, and three dimensional motion. Dimensional means in space we require at least three dimensions to occupy or to identify the position of any point x, y, and z. Now, one dimension motion means only one dimension. Means suppose P is a point and position of P is defined as x1, y1, z1. Means these are the coordinates of point P. On x-axis this is at x1, on y-axis this is y1, on z-axis this is z1. So the position of P is defined by x1, y1, and z1. Now one dimension motion. If only, you can say, if only one variable, one coordinate, either it is x or y or z, change with time and remaining two remain same, then it is called one dimensional motion. For example, अगर हमने इसको x बोला हुआ है तो एक पर्सन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो जब एक पर्सन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसकी सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, ना y चेंज हो रहा है ना z चेंज हो रहा है. तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट इसका चेंज हो रहा है, मीन सिर्फ एक कोऑर्डिनेट इज satisfying its motion. Is only one coordinate is used to satisfying this motion to define the motion of this particle. That's mean उसका motion क्या हुआ? One dimension motion हुआ. In other way, suppose it is moving in this direction, means in x direction there is a motion and in z direction there is also some displacement. तो इसके motion अब दो हो गए, x भी चेंज हो रहा है और z भी चेंज हो रहा है, बट y चेंज नहीं हो रहा है. तो if two coordinates, any two x, y और z, कोई से भी दो coordinates उसकी पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे टू डायमेंशन मोशन. ठीक है. तो अगर एक कोऑर्डिनेट इसका चेंज होगा तो उसको हम बोलेंगे वन डायमेंशन मोशन. दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो हम उसको बोलेंगे टू डायमेंशन मोशन. सिंपल एग्जांपल, एक पर्सन है और वो एक स्ट्रेट रोड पे जा रहा है. उस रोड को हमने एक्स से डिफाइन कर दिया तो वो क्या हो गया? वन डायमेंशन मोशन हो गया. ठीक है. एक सिंपल स्ट्रेट रोड पे जा रहा है तो वो हो गया वन डायमेंशन मोशन. देन क्या हुआ? ये इस रोड पे जा रहा है, इसी रोड को हमने बोल दिया एक्स डायरेक्शन, तो ये हो गया वन डायमेंशन मोशन. आफ्टर देन क्या हुआ? रोड टर्न हो गई. अब वो ये डायरेक्शन हमने कौन सी ले ली? बाई डायरेक्शन. तो अब वो एक्स पे भी मोशन हुआ, देन उसका मोशन किधर हो गया? बाई डायरेक्शन में हो गया. तो ये एक्स
ये y, अब उसके मोशन दो हो गए, तो x मोशन हो गया, y मोशन हो गया, दैट्स मीन it is moving in two-dimensional motion. It is defined by the two-dimensional motion. Third thing, three-dimensional motion means x, y and z. All three coordinates are varying with time. All three coordinates are changing with time. Then its motion will be three-dimensional motion. Means वो आगे जाके, ठीक है, ये x डायरेक्शन हुआ, ये y डायरेक्शन हुआ और ये z डायरेक्शन हुआ. मीन्स आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस इट अप स्टेयर्स, मीन्स किसी जीने पे ये चढ़ गया, ठीक है, एक पेड़ लगा हुआ है, पेड़ पे चढ़ गया, ठीक है. तो अब इसका मोशन, ये एक डायमेंशन, ये दूसरा डायमेंशन और ये तीसरा डायमेंशन. मीन्स उसका जो डेफिनेशन है, उसका जो उसको हम डिफाइन कर पाएंगे वो थ्री डायमेंशन से कर पाएंगे. तो सिंपल अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें, क्योंकि कई बार एग्जाम्पल पूछ ले जाते हैं. एक पर्सन एक स्ट्रेट रोड पे चल रहा है तो उसका मोशन होगा वन डायमेंशन. एक पर्सन एक फील्ड है, बड़ी सी फील्ड है, ग्राउंड है, पार्क है, उस पार्क में इधर से उधर मूव कर रहा है, टहल रहा है, कभी दाएं जा रहा है, कभी बाएं जा रहा है, ठीक है, तो उसका मोशन हो गया टू डायमेंशन मोशन. और पार्क में चलते चलते वो एक कोई बिल्डिंग बनी हुई है, साइड में एक रूम बना हुआ है, उसकी छत पे चढ़ गया या किसी पेड़ पर चढ़ गया, ठीक है, या फिर हम किसी चिड़िया का एग्जाम्पल ले लें, बर्ड का एग्जाम्पल ले लें, वो चिड़िया उड़ रही है, ठीक है, तो वो इधर उधर भी जाएगी और ऊपर और नीचे भी जाएगी. तो in that case, means the motion of a flying bird. Motion of a flying bird is a simplest example of three-dimension motion. Motion moving or walking on a straight road is example of one-dimension motion. Walking on a floor or on the ground is example of two-dimension motion, and motion of a flying bird is example of three-dimension motion. तो ये थोड़ा सा इसको टॉपिक थ्योरेटिकल टॉपिक है, न्यूमेरिकल नहीं है, डेरिवेशन भी नहीं है. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस टॉपिक.